Hello dear all and welcome to my channel. So today I am going to explain you about the poem number 8, Lord of Tartary. This poem has been written by Walter Daly Murray. So let's begin. It's a quite old-fashioned poem and you will like it, this poem. Why? Because it is quite full of fantasies. So here let's start. Before that, let me give you a brief introduction. So here they are asking few questions. Let's go through it. Have you ever dreamt of ruling over a mighty kingdom? What would you wish for in such a life? So if you get a chance to rule some a very mighty kingdom, so what you will think about it? So what would be your wish? What you will do after being the king of that mighty kingdom? So here also Walter de Mare, he is the poet of this poem. He is thinking about as a small child, how that small child would wish, what he would feel that if he get a chance to become the king of any imaginary place. So here that name of that imaginary place is Tartary. Can you see here? Tartary. So here that small child is feeling, he is wishing that if I were the Lord of Tartary, myself and me alone. Here means that small child, वो छोटा सा बच्चा ना, here that small child is the speaker of the entire poem. He is wishing. So what he is saying? The speaker, he is imagining himself being the ruler of Tartary. मीन्स यहाँ पे वो क्या सोच रहा है कि एक इमेजिन एक सपनों की दुनिया है जहां का मैं राजा हूं. वो जगह का नाम क्या है? टार्टरी. तो वो क्या बोल रहा है? ही इज सेइंग इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, मतलब अगर मैं टार्टरी का राजा होता तो myself and me alone. So what he's saying that he wants, here the meaning of the second line is he wants to be the sole ruler with no one else in charge. So what is mean to say myself and me alone? Means he is saying that he wanted to sole ruler means वो अकेला ही उसको रूल करे एंड nobody should share. मतलब उसका कोई ऐसा कोई मतलब जोड़ीदार यानी कहने का मतलब पार्टनरशिप में वो जो है वो राज ना करे, बल्कि वो उस जगह का पूरा खुद ही राजा हो, उसके साथ और कोई पार्टनरशिप में ना हो. सो माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी. सो आइवरी मीन्स क्या बोल रहा है? देखो आइवरी इट इज शोइंग ऑफ द लग्जरी, है ना. आइवरी जो है, जो क्या बोलते हैं उसको, हाथी के दांत से बना हुआ जो रहता है उसको आइवरी बोलते हैं. ऑफ बीटन गोल्ड माई थॉर्न मीन्स यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर मैं राजा होता तो मैं क्या करूंगा, ऐसा सिंपल लाइफ थोड़ी रहेगा, मैं तो राजा हूं. सो व्हाट ही वाज थिंकिंग, माय बेड शुड बी ऑफ आइवरी. मेरे जो बेड है वो किससे बना होगा, क्योंकि मैं तो राजा हूं, तो मैं सिंपल इंसान तो हूं नहीं कि मेरा लकड़ी का बने रहेगा फर्नीचर. तो वो क्या सोच रहा है कि मेरा थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, आइवरी का बना होना चाहिए, हाथी के दांत का बना होना चाहिए. ऑफ बीटन गोल्ड माई थॉर्न, और उसका जो थॉर्न है यानी कि उसका जो सिंहासन है वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी मेड अप ऑफ प्रीशियस मेटल. अब गोल्ड मतलब बहुत ही प्रीशियस है ना. तो क्या बोल रहे हैं, मेरा सिंहासन भी आम नहीं होगा, है ना, मैं जहां जहां पे बैठूंगा. तो ये क्या सोच रहा है? ही इज हैविंग अ लग्जरियस, वो सोच रहा है कि आई शुड हैव, क्योंकि मैं राजा हूं, बिकॉज आई एम अ किंग, तो मेरा लग्जरी लाइफ होना चाहिए, मेरे बेड भी लग्जरियस होनी चाहिए, और मैं जिसमें बैठूंगा, जिस थॉर्न में बैठूंगा, सिंहासन में बैठूंगा, वो भी लग्जरी होना चाहिए, प्रीशियस मेटल से होना चाहिए. एंड इन माई कोट शुड पीकॉक फ्लॉन्ट, और वो क्या चाह रहा है? व्हाट दैट स्मॉल चाइल्ड वांट्स, he wants that peacock. Here can you see that in the entire poem na, you could see that the small child, he is wishing of all the things which is impossible. Why he is thinking so? Because he is feeling himself that he is the king of that place, Tartary. So he want everything to be different from the actual life, from the simple life. So what he is saying that in my court should peacock flaunt. Court means यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? दरबार. So what he is saying? Peacock should proudly display. यहाँ पे peacock से क्या बोल रहे हैं? Because peacock is very
रेयर बर्ड्स, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पीकॉक एंड इट वन ऑफ द ब्यूटीफुल बर्ड है ना, सो ही वांट्स व्हाट, दैट पीकॉक वुड प्राउडली डिस्प्ले हिमसेल्फ देमसेल्फ in his coat. In his coat means उस बच्चे के कोट में. And then what he want? Not only peacock, but he wants that. And in my forest, tiger haunt. So what he wants, that he should have some private forest also, and tiger should haunt there. घूमना चाहिए, रोम अराउंड करना चाहिए. तो क्या बोल रहे हैं, मेरे कोट में कौन रहना चाहिए, पीकॉक फ्लॉन्ट करना चाहिए, डांस करना चाहिए, चलना चाहिए स्टाइल से. एंड मेरे फॉरेस्ट में कौन रहेगा, टाइगर्स. And in my pools, great fishes slant their fins athwart the sun. So यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब देखो वो अपने पूल में क्या चाह रहा है, that big fish, he wants what, he want a great fish means big fish, huge fish. Big fish would swim in his pools, and what the fish will do, showing off their fins in the sunlight. Here you can see great fish slant their fins athwart the sun, means the fish should show off their fins in the sunshine, means it under the sunshine it will shine like a silver, means जो बड़े बड़े मछलियां हैं उसके पूल में चलेंगे और वो अपने फिन्स जो है सनलाइट में दिखा के वो भी एकदम सिल्वर टाइप का चमकने लगेगी. So the next poem goes like here. If I were Lord of Tartary, trumpeters every day. So what he is saying that if I were, again he is wishing कि वो बार बार वो बोल रहा है कि अगर मैं टार्टरी का यानी इमेजिनरी प्लेस का मैं राजा होता तो क्या होता, ट्रम्पटर्स एवरी डे, मतलब हर रोज जो है वो जीत की खुशी होती है ना, जीत, इसके जीत पे, जीत यानी कि एनीथिंग, टू विन एनीथिंग. सो trumpeters would announce things daily. Trumpeters every day means trumpeter जो जीत है, देखो जब राजा जीतते हैं ना तो उनके जो दरबारी हैं या फिर उसके जो छोटे छोटे सैनिक होते हैं वो ड्रम बजा के, शंख बजा के वो ना वो जीत का अनाउंसमेंट करते हैं लोगों के बीच में. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर मैं राजा होता रोज ऐसी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स होते रहते. ही इज सेइंग दैट टू माय ऑल मील्स should summon me. Summon means to call someone. Clear? So what he is saying, to my meals means उसके खाने के लिए भी उसको बुलाया जाता. वो राजा है ना तो राजा के लिए उसको जैसे he wants himself to be treated as a king. सिर्फ वो इमेजिन ही नहीं कर रहा. He is saying that मुझे ऐसा ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए. So क्या बोल रहा है कि to my meals should summon me means मेरे खाने के लिए मुझे ऐसा बुलाया जाता, जैसे राजा लोग को बुलाते हैं ना, राजा धीराज महाराज, ऐसा इस टाइप का. एंड इन माई कोर्ट यार्ड ब्रे एंड इन द इवनिंग लैम्प शुड शाइन. तो क्या बोल रहे हैं, और मेरे कोर्ट यार्ड में क्या होता, डोंकीज. ब्रे कौन करता है, डोंकीज. सो डोंकीज वुड ब्रे इन हिज कोर्ट यार्ड. तो मीन्स क्या बोल रहे हैं कि मीन्स क्योंकि वो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, ही वॉन्ट्स मैक्सिमम एनिमल्स टू बी विद हिम and he enjoy the company of that animal. देखो पहले उसने क्या बोला था, peacock बोला, then tiger बोला, then fish and now donkey. So he wants animals to be near him. And in the evening lamp should shine yellow as honey, red as wine. तो क्या बोल रहे हैं, इन इवनिंग, शाम के समय क्या होता है, उसके जो लैम्प्स जलते, जैसे लैम्प जलता है ना घर पे, हम लोग लाइट ऑन कर देते हैं शाम के समय, यहाँ पे भी that small child is wanting what, that during the evening lamp should shine in the, मतलब जैसे ही शाम होगा चारों तरफ पूरी रोशनी रोशनी होती, कैसे, by lighting the lamp, लैम्प को जला के, ठीक है. और ये लैम्प भी कोई ऐसा नहीं, कैसा होता, लैम्प्स they are yellow as honey, red as wine, means lamps would be कलरफुल, कलरफुल होना चाहिए था. वो चाह रहा है राजा तो पूरी रंगीन होनी चाहिए, है ना, बहुत ही कलरफुल लाइफ होनी चाहिए उसकी. तो लैम्प्स वुड बी कलरफुल लाइक हनी एंड रेड लाइक अ वाइन. तो यहाँ पे कैन यू सी एज यूज किया है, येलो एज हनी, रेड एज वाइन. सो हियर एज, हियर द लैम्प इज बीन कंपेयर्ड विथ हनी. लैम्प को मतलब यहाँ पे येलो एज हनी, कौन येलो, क्या चीज येलो है, लैम्प, है ना. रेड एज वाइन, तो क्या चीज रेड है वाइन के जैसे, लैम्प. अगेन तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड. लैम्प को किसके साथ, हनी के साथ, और लैम्प को वाइन के साथ कंपेयर किया जा रहा है ना.
सो ये दोनों ही, और कंपेयर कैसे किया जा रहा है, एज वर्ड लगा के। बेटा बच्चे ये याद रखेंगे, जब भी एज या फिर लाइक वर्ड यूज करके, ही इज लाइक हिम ऐसा, शी इज लाइक द रैबिट ऐसा अगर आ गया, देखो लाइक वर्ड यूज हुआ और कंपेयर हो रहा है शी को रैबिट के साथ, तो जब ऐसे कंपैरिजन होता है और एज या फिर लाइक वर्ड यूज होता है, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, सिमिली, SIMILE, सिमिली, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, सो नेक्स्ट तो हमने देख लिया लैम्प कैसे रहेंगे, येलो एज हनी एंड रेड एज वाइन, वाइन के जैसे लाल। while harp and flute and mandolin made music sweet and gay, अब वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे दरबार में, मेरे कोर्ट में भी ऐसा बोरिंग नहीं होना चाहिए, कलरफुल तो हो ही गया, अब म्यूजिकल भी होना चाहिए। तो हार्प, दीज आर नथिंग बट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हार्प हो गए, फ्लूट हो गए, बांसुरी है, जैसे मैंडोलिन भी बजाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे दरबार में पूरा म्यूजिकल नोट चलेगा। एंड क्यों चलेगा, बिकॉज म्यूजिक वुड बी मेकिंग पीपल हैप्पी एंड स्वीट, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट, वो चाह रहे उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो। सो लेट्स सी नेक्स्ट, इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, फिर से वो बच्चा रिपीट कर रहा है, यू कैन से दैट इट इज अ रिपीटेशन, है ना, बार बार ये लाइन रिपीट हो रहा है। इफ आई वर द लॉर्ड ऑफ टार्टरी आई वुड वेयर अ रॉब ऑफ बीड्स, अब वो क्या बोल रहा है, अब मैं राजा हूं तो मैं अब वो ड्रेस की तरफ बोल रहा है, पहले तो वो कोट के बारे में बोला है ना, यानी उसके दरबार के बारे में बोला कि उसका दरबार कैसे होने चाहिए, पिकॉक होने चाहिए, डोंकीज होने चाहिए, टाइगर होना चाहिए, है ना। तो दूसरा, अब नेक्स्ट ही इज डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज ड्रेस, तो अब वो छोटा सा बच्चा है और वो राजा है, तो वो ऐसा सिंपल ड्रेस तो पहनेगा नहीं, तो व्हाट ही इज सेइंग दैट आई वुड वियर अ रोब, रोब मींस क्या, जो एक बड़ा सा कपड़ा होता है जो पीछे, देखो आप देखा होगा राजा लोग जब चलते हैं ना, पीछे एक कपड़ा है ना, वो झूलता रहता है ना, तो वही बोल रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड रोब। तो आई वुड वियर अ रोब ऑफ बीड्स, उसमें क्या लगा रहेगा, बीड्स, बीड्स यानी छोटे छोटे मोती, और वो बीड्स कैसे होंगे, व्हाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन, दे वुड बी एंड स्मॉल थिक एज सीड्स, देखो वहां पे फिर से बीड्स को किसके साथ कंपेयर किया, सीड के साथ, बीज के साथ, थिक एज सीड्स, थिक क्या चीज थिक है, बीड, और वो कैसे थिक है, सीड के जैसे, है ना, बीज के जैसे। जो बीड्स है, बीड्स यानी कि जो मोती है, मोती कैसे, बीज के जैसे है, थिक, बीज के जैसे मोटा है। और कंपेयर किस वर्ड से किया गया, अगेन देखो यहाँ पे एज लग गया है, तो अगेन इट इज अ सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, सिमिली। तो उसने क्या बोला, बीड भी कोई ऐसे बेरंग सा नहीं होगा, बीड भी कलरफुल होने चाहिए, यानी जो मोती लगे रहेंगे उसके रोब में वो भी कलरफुल होने चाहिए, कैसा। अच्छा देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रोब, दिख रहा है, ये देखो बच्चे ने रोब डाल के रखा है उसकी, दिख रहा है इसके, हाँ, तो जो राजा लोग ऐसा वियर करते हैं वो रोब रहता है, जो पीछे झूलता रहता है, तो वो कैसे होगा, बीड्स भी, बीड्स यानी कि मैंने अभी बताया मोती कैसे कलर का होगा, व्हाइट होगा, गोल्डन कलर होगा, ग्रीन कलर होगा, और थोड़े थिक होने चाहिए, छोटे छोटे नहीं, थोड़े बड़े होने चाहिए, कैसा, सीड के जैसे यानी बीज के जैसे। एंड इट शुड वर्न द मॉर्निंग स्टार, आई हैड डॉन माई रोब एंड स्कीमिटर, यानी कि क्या बोल रहा है, एंड ईयर, यहाँ पे ईयर का मतलब देखो आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे बिफोर, एंड वैन मीन्स डिक्रीज इन ब्राइटनेस, यानी कि सुबह होने से पहले, एंड इट शुड वेन मीन्स जैसे ही सुबह, इट का हमने देखा बिफोर, यानी कि जब सूरज की रोशनी आने के पहले, यहाँ पे लिखा है ना वेन द मॉर्निंग स्टार, तो जो स्टार्स हैं उनके जाने, यानी वो जाएंगे और सुबह होगा, तो सूरज उगने के पहले वो क्या करेगा, आई वुड डॉन माई रोब, डॉन यानी कि आई विल वियर, मतलब मैं पहन लूंगा क्या, माई रोब, अभी मैंने बताया था रोब यानी वो बड़ा सा कपड़ा जिसमें बीड्स लगेंगे, एंड स्कीमीटर, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि मैं सुबह होने के पहले आई वुड वियर द रोब एंड स्कीमीटर मीन्स स्वॉर्ड, स्वॉर्ड यानी कि जो तलवार होता है उसे मैं पहन लूंगा, एंड जीब्राज 7 शुड ड्रॉ माई कार, वो, और फिर वो क्या बोल रहे हैं, अभी अपना उसने ड्रेस के बारे में डिस्क्राइब किया, नाउ ही इज डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज व्हीकल, तो वो क्या बोल रहा है कि मैं जिसमें जाऊंगा वो भी आम चीज नहीं होगा, वो भी क्या होगा, मेरा जो कार है उसको कौन खींच के ले जाएगा, जीब्राज, थ्रू टार्टरीज डार्क ग्लेड्स, तो यहाँ पे ग्लेड्स का मीन्स क्या होता है कि फॉरेस्ट, तो क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो कार है उसको जीब्रा खींच के लेके जाएंगे कहाँ पे, टाटरी का जो खुद का डार्क बहुत ही
डेंस फॉरेस्ट है, वहां से मेरा कार लेके जाएगा। ठीक है, द लास्ट पैराग्राफ, लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ टार्टरी हियर हर रिवर्स सिल्वर पेल, लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ टार्टरी ग्लेन थिकेट वुड एंड डेल। सो व्हाट ही इज आस्किंग दैट, तो क्या बोल रहे हैं कि इवन सिर्फ वो टार्टरी के, यानी जो इमेजिनरी प्लेस है टार्टरी, सिर्फ वहां के एनिमल्स और वहां की जगह पे नहीं, इवन वो फॉरेस्ट पे भी उसका मीन्स वो जो राज करेगा, है ना। तो राज क्या करेगा, वो बोल रहा है इवन द लॉर्ड्स ऑफ द फ्रूट, वहां का जो फ्रूट्स है उस पर भी उसका राज होना चाहिए, उसके हुक्म चलनी चाहिए। हर रिवर सिल्वर पेल, और फिर क्या बोले, टार्टरीज रिवर वुड बी पेल लाइक अ सिल्वर। अब वो इमेजिन कर रहा है मेरा जो रिवर है, मेरे जगह का जो रिवर होगा, मेरे किंगडम का जो रिवर होगा, वो भी साधारण सा नहीं होगा, वो कैसा होगा, सिंपल नहीं होगा। इट वुड बी द रिवर विच वुड बी पेल लाइक सिल्वर, सिल्वर जैसे वो चमचमाता होगा। लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ टार्टरी, अब वो हिल्स के बारे में बोल रहे हैं कि वो हिल्स कैसे होगा, दैट ही व्हाट ही सेइंग दैट ही सेइंग दैट ही वुड रूल ओवर द हिल्स टू। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं हिल में, टार्टरी के जितने हिल है उस पे भी मेरा रूल चलेगा, मेरा राज चलेगा। और वो हिल कैसे होंगे, ग्लेन, थिकेट, वुड एंड डेल। मीन्स ये जो क्या बोल रहे हैं कि बहुत ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीनिंग भी लिखा हुआ है। थिकेट यानी जो पूरे बुशेस है, बहुत ही डेंस भरा हुआ, ठीक है। एंड ग्लेन मीन्स क्या बोल रहे हैं, वैली। वैली क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच में जो जाने का रास्ता होता है ना, तो उसको बोलते हैं ग्लेन, यानी कि वैली। तो चाहे वो ग्लेन हो, वो बोले हिल पे तो मेरा राज होगा, साथ साथ में ग्लेन में यानी कि वैली में, थिकेट यानी कि थिकेट वुड यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फॉरेस्ट की बात बोल रहे हैं। एंड डेल यानी कि जो ओपन वैली है। फिर देखो दो पहाड़ों के बीच में से जो रास्ता जाता है, फिर देखो बीच में आके यानी वो ओपन हो जाता है, खुला है, जहां पे लोग रहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, वो ओपन वैली में भी मेरा रूल चलेगा। ठीक है, हर फ्लैशिंग स्टार्स, हर सेंटेड ब्रीज, हर ट्रम्बलिंग लेक्स, हर फोमलेस सीज, यानी इन सब में उसका राज चलना चाहिए। ही सेइंग दैट ही वांट टू रूल ओवर एवरीथिंग, not only the kingdom but even the entire the natural things which is there in the Tartary, he want to rule over there। वहां पे भी वो रूल करना चाह रहा है। क्या बोल रहा है, द फ्लैशिंग स्टार्स, क्या बोले, टाटरी के ऊपर जितने भी स्टार्स हैं, एंड ब्रीज जो ठंडी हवाएं चलती हैं, खुशबूदार हवाएं। खुशबूदार क्यों, फॉरेस्ट से हवा चल रही है तो फूलों की अलग अलग खुशबू है, फल की अलग अलग खुशबू है, तो ये जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है उसके ऊपर रूल करेगा। हर ट्रम्बलिंग लेक्स, जो उसके ये लेक है, जो व्हाट इज लेक, लेक इज अ बिग फॉर्म ऑफ अ पॉन्ड, है ना। तो बड़ा सा जो लेक है, और वो कैसा है, काम, एकदम काम है, मतलब शांत है लेक, उस पर भी उसका राज चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, हर बर्ड्स डिलाइटिंग सिट्रन ट्रीज। सिट्रन मीन्स जो सिट्रिक जो फ्रूट्स होते हैं, यानी जो रसीले फ्रूट्स हैं, ऐसे ट्रीज पे कौन बैठे हैं, हर बर्ड डिलाइटिंग, यानी कि जो बर्ड्स है यहाँ पे वो बहुत ही खुश है। डिलाइट यानी खुश होना, तो ट्रीज भी खुश, बर्ड्स भी खुश, एवरीथिंग इज लाइक म्यूजिकल नोट, है ना। सो इन एवरी पर्पल वेल, मीन्स क्या बोल रहे हैं, इन एवरी ब्यूटीफुल वैली। पर्पल वेल क्यों, पर्पल मीन्स फूल की बात कर रहे हैं। तो कोई वैली में अगर सुंदर सुंदर फूल लगे रहेंगे तो नेचुरली वो जगह बहुत सुंदर दिखेगा। तो क्या बोल रहे हैं, चाहे वो बर्ड बोलो, सिट्रस फ्रूट बोलो, ट्रीज बोलो, या फिर वेल बोलो। वेल यानी अभी हमने देखा था जो वैली है उसको हम वेल बोलते हैं। तो सारी चीज बहुत ही खूबसूरत रहेंगे अंडर हिज rule। Okay, so this poem was written by, already I have explained, Walter de la Mare, and he was an English poet, novelist, and he used to write his writing more about children। उसे बच्चों के लिए लिखना बहुत ही पसंद था। ठीक है, उसने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, ये सारी चीजें लिखी हैं। and I hope you have enjoyed this poem and understood this poem। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसका राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम क्या है, जो राइमिंग स्कीम कैसा होता है, जो लास्ट वर्ड होते हैं, जैसे टार्टरी हो गया, देखो लास्ट वाला देखें, टार्टरी ई आ रहा है, आइवरी ई, तो ये टार्टरी को ई ए मान लेते हैं, आइवरी ये भी ई ऐसी आवाज आ रहा है, तो ए, तो ए। अब देखो अलोन,
थ्रोन, ओन आवाज आ रहा है ना, तो इसको हम बी मान लेते हैं, तो बी बी। वैसे देखो फ्लॉन्ट, हॉन्ट, तो ये क्या हो गया सी सी। तो इसके जो राइम स्कीम क्या है, ए बी, ए बी, क्योंकि देखो टाटरी ए था, लोन हमने बी बोला था, तो ए बी, ए बी, फिर ये क्या बोला था हमने, सी सी सी। ठीक है, तो this is the rhyming scheme of the poem. So I hope you have enjoyed this poem. If you, my dear children, if you have any doubt regarding this poem, you can write, you can share your doubts with me, and I will definitely clear your doubt. So do comment in comment section box, and if you have liked and if you have understood this poem, kindly share with your friends. Okay, till then, bye bye.